Hello, friends. How are you doing today? Friends, my name is Anjali Gupta. I welcome all of you to The Anjali Show. Friends, in The Anjali Show, we always call people who would like to share their message with the world. These can be influencers, these can be entrepreneurs, these can be professionals, these can be coaches, speakers, trainers, anyone and everyone who would like to share their message with the world. And this can be even you. And we always call these eminent personalities amongst us because there is a lot to learn from them and share their message with the world. So, friends, today we have yet another eminent personality with us, Mr. Kanishk Singh Vishwa. Let me just read out his bio to you. He is an author, a book publishing coach, educator, and business trainer. He's also the president of EFI, which is a group of entrepreneurs around the globe. He's the founder and director of Vital Vishwa Publications Private Limited. Vishwa Mohan Singh has started his journey as a mathematics teacher and has been in teaching and training entrepreneurs for 20 years. He has witnessed many success and has helped many people achieve their goals. He has witnessed many success stories and knows the secrets of success, which all the other successful people have experimented with around the globe. His fan followings, my friends, are mostly those who lead others, and rightly so. His passion is to help people reach their ultimate best as authors, entrepreneurs in their careers. Almost all his training sessions are filled with insights, high energy levels, enthusiasm, and enthralled participants. Wow. Friends, do you know his mission is to help 11,000 authors and help them become the number one bestseller author? We welcome you on board, Mr. Vishwa Singh. Can you hear me? Hi, hi. Yeah, Hi. yeah. Hi, Anjali. So, thanks for inviting me for your show. And your show is so amazing. And I am obliged that you have invited me. So, thanks a lot Thank for you so inviting me. much. Thank you. Thank you so much. So, Vishwaji, people would like to know, and I think there have been a lot of curiosity around authorship. So that is why we chose you that you should come on the show and help the people understand what is authorship all about. तो मतलब लोग author क्यों बनना चाहते हैं? I would like to take it as a mix of Hindi and English because people would like to understand. We have all kinds of audience. We have people who are from Hindi. We have people who speak English. So I would like to make it a mix. And मैं कुछ questions आपसे पूछना चाहूंगी authorship के बारे में कि author बनने का क्या फायदा होता है और ये लोगों को किस तरह से मदद करता है? क्योंकि आपने अपने बायो में मेंशन किया है कि आप एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं अपना उनको जो भी कोई ऑथर बनना चाहता है आप उनको हेल्प करते हैं तो किस तरह से ऑथर बनना हेल्प करता है लोगों को उनके करियर में Great question. Author itself, a word is derived from authority. ऑलराइट When you write, when you write anything about a certain content, it means you are expertise in it. You have immense knowledge in it. ओके So it shows authority. ये आपको एक ऑथोरिटी शो करता है जब आप किसी सब्जेक्ट पे लिखते हो इसका मतलब इसका आपको काफी अच्छा नॉलेज है और लोगों के माइंड में ये इमेज जाता है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में लोगों को बेहतर बता सकते हो एज कंपेयर टू अदर्स राइट ओके सो राइट व्हेन इफ यू आर एंटरप्रेन्योर अगर आप एंटरप्रेन्योर है और अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो किसी भी ट्रेनिंग फील्ड में हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर आपने उस टॉपिक पे बुक लिखी है एंड सपोज वो बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर भी रही है इन दैट केस जो ऑडियंस है जो आपके क्लाइंट है जो आपके कस्टमर्स है जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको दूसरे के कंपैरिजन में बेटर समझते हैं इससे ओके आपकी जो फैन फॉलोइंग्स है वो ट्रेमेंडसली एनहांस होती है सो दैट इज द मेन रीजन टू राइट अ बुक Okay, that is wonderful. So, friends, do we understand one thing?
The word author comes from authority, and as Mr. Vishwa has said, अगर हमें अथॉरिटी अपनी स्टैब्लिश करनी है मार्केट में अपने क्लाइंट्स के सामने, तो बुक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिस्टर विश्वा है आपको हेल्प करने के लिए, अपनी बुक को Amazon #1 बेस्ट सेलर बनाने के लिए आपको जो भी कोई गाइडेंस चाहिए, आप विश्वा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विश्वा जी, मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी पोस्ट देखती हूँ और वो कहते हैं कि आप 7 डेज में ऑथर बन सकते हैं। अब मुझे थोड़ी हैरानी इसके लिए होती है क्योंकि इतने सारे लोग इतने सालों से बुक्स लिखना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो लोग बुक्स को नहीं लिख पाते हैं। तो हम क्या करें क्या ना करें, इस तरह की पोस्ट पर क्या हम विश्वास करें? देखो, कई सारे ट्रेनर्स हैं जो 7 डेज में ऑथर बनाते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि इन 7 डेज यू कैन बी ऑथर। ठीक है, मैं इस चीज को मैं नेगेटिव नहीं मान सकता और नहीं मानता हूं, बट फिर भी मेरा अपना पर्सनल जो थॉट है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस पे, कि आप 7 डेज में तो ऑथर बन ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। आप जब भी किसी सब्जेक्ट पे लिखते हो तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज 7 डेज में ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आएगी, राइट? तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज चलते हैं कि बिकम एन ऑथर इन 7 डेज, उस मैसेज का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ओके, एक्चुअली आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट को जस्ट अपलोड करना सिखाते हैं कि विद इन 7 डेज वो आप उसको अपलोड करना सीख जाते हैं किसी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे। प्लस, अच्छा, और वो जो अपलोड करते हैं वो मैक्सिमम 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज, अगर आपने 2000 वर्ड्स लिख लिया और आपने कल पे डाउनलोड कर दिया, तो अपने आप ऑथर मान लेते हैं। ओके, बट मेरा पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। अगर मिनिमम 15,000 टू 20,000 वर्ड्स अगर आपने नहीं लिखा है तो आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्ट 10 पेज लिख करके अपने आप को ऑथर कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा, राइट? तो एटलीस्ट यू मस्ट राइट 1000 टू 15,000, ताकि आप अपने आप को भी जस्टिस कर पाओ और सामने से जो आपके रीडर्स है, जो आपके क्लाइंट्स है, जो आपके फैन फॉलोइंग्स है, वो भी इन चीजों को जस्टिफाई कर पाए। अच्छा, तो आई थिंक 7 डेज में ऑथर बनना, आई थिंक इट इज अ मिथ। हम ओके। इसको मिथ ही कहेंगे। तो विश्वा जी ये बताइए कि 15,000 पेजेस जब जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो अब 15,000 वर्ड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस हो जाते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि 100 पेजेस हैं या 200 पेजेस हैं, हमें कितने पेजेस लिखने चाहिए? राइट, 15,000 वर्ड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, सो इसमें नंबर ऑफ पेजेस अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास बनता है। बट ओके, इसमें अबाउट ऑथर होता है, पब्लिशर पेज होता है, डेडिकेशन होता है, प्रीफेस होता है। सो ये सारा अगर काउंट कर लेते हैं, सो इट कम्स अबाउट 115 पेजेस। तो एटलीस्ट अगर आपकी 100 पेज की बुक है तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो कि यू आर एन ऑथर। ओके, सो मिनिमम वर्ड्स जो मैंने बताया दैट इज 15,000। बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे एक ऑथर है, जस्ट अभी हमारी एक बुक रिलीज हुई है, बिट्रायल अच्छा, ऑफ चाइनीज ड्रैगन। उन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया, ही हैज रिटन अराउंड 2 lakhs वर्ड्स। ओ, 2 लाख और वर्ड्स। और 2 lakhs वर्ड्स, और मेरे काफी कहने के बाद उन्होंने जब रिड्यूस किया तो ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 के आसपास बनी। और उनकी जो बुक है 500 पेजेस की बुक है। वाह, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितने पेजेस की बुक लिखना चाहोगे। मिनिमम इज, मेरी जो रिकमेंडेशन है, मिनिमम इज 100 पेज एंड मैक्सिमम इट इज योर चॉइस। ऑल राइट, फाइन। सो 100 टू 500 पेजेस के बीच में फ्रेंड्स हम लोग बुक लिख सकते हैं, एंड देन पीपल विल रियली कंसिडर एज एन अथॉरिटी। यूजुअली होता है हम छोटी छोटी बुकलेट्स देखते हैं करेक्ट, 10 राइट। पेजेस की, विच इज नॉट actually enough ये to make us an authority on the subject. This is what Vishwaji is saying. Am I right, Vishwaji? राइट, 100% एब्सोल्युटली राइट। Okay, great. आप 10 पेज में क्या नॉलेज दे पाओगे और रीडर्स को? सो Right. देयर मस्ट बी एट लीस्ट 100 टू 150 पेजेस, राइट? Okay.
तो विश्वा जी उस केस में क्या करें जब कई बार ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी सब्जेक्ट नॉलेज होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है, वो किस तरीके से अपनी ऑथरशिप को, अपनी अथॉरिटी को शेयर करें दुनिया के साथ, अपनी नॉलेज को शेयर करें? वो अंदर ही अंदर कुल बुलाते रहते हैं, वो शेयर करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हमारी राइटिंग स्किल्स का हम क्या करें। राइट, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि नॉलेज होने के बावजूद भी कई बार राइटिंग स्किल की प्रॉब्लम होती है या कुछ केसेस में टाइम की प्रॉब्लम होती है, लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपर दे सके। जी। बट इन दैट केस वी पीपल कैन हेल्प यू, हम लोग को प्रॉपर है, हम प्रॉपर डे वन से आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और ओके। उस गाइडेंस को लेने के बाद आप अगर मैक्सिमम 2 आवर्स टू 3 आवर्स पर डे अगर आप अपने आप को राइटिंग में टाइम देते हैं, तो विद इन अ मंथ योर 100 पेज बुक विल बी कंप्लीटेड। ओके। फिर भी अगर आपके पास 2 आवर्स और 3 आवर्स का टाइम नहीं है, इन दैट केस देयर इज अ वर्ड घोस्ट राइटिंग। आप मेरे से कनेक्ट करके घोस्ट राइटिंग करवा सकते हैं। घोस्ट राइटिंग क्या होता है, थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता दूं जी। कि आपसे आपके सब्जेक्ट की आइडियाज घोस्ट राइटर लेते हैं और उस आइडियाज को अपने लैंग्वेज में, जिस किसी भी लैंग्वेज में आप चाहोगे, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आपको लिख करके देते हैं विदाउट स्टेटिंग हिज और हर नेम। वो अपना नाम नहीं बताते हैं, दैट इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। तो अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, लिखने में कुछ परेशानी है, सो देन यू कैन कनेक्ट मी, ताकि मैं आपको घोस्ट राइटर से मिलवा दूं और आपके आइडियाज को प्रॉपर तरीके से लोगों तक ले आऊं। तो विश्वा जी आपके इस वाले को आंसर से मुझे दो बातें यहाँ पर समझ में आई कि अगर हम 2-3 घंटा रोज का निकालें तो आपकी गाइडेंस के साथ हम एक अच्छी सी बुक लिख सकते हैं 1 महीने के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हमें बहुत ज्यादा परेशानी है टाइम की, किसी भी वजह से हम बिजी हो सकते हैं अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम घोस्ट राइटिंग करवा सकते हैं विच इज गोइंग टू हेल्प अस बिकम एन अथॉरिटी। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें कि घोस्ट राइटिंग में आइडियाज आप ही के होंगे, किसी और के नहीं होंगे। आप अपने आइडियाज घोस्ट राइटर को बताएंगे, जो अपना नाम सामने नहीं लेकर आएंगे, वो आपके ही आइडियाज को आपकी बुक में ट्रांसलेट करेंगे आपकी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, और उसको समय समय पर आप एडिट कर सकते हैं, समय समय पर आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से जा रहा है। तो इस वजह से आपको फायदा ये होगा कि आप बुक को लिख पाएंगे, अथॉरिटी अपनी क्रिएट कर पाएंगे, जो अदरवाइज शायद मुश्किल लग रही है। तो इस तरीके से आपको विश्वा जी हेल्प कर सकते हैं आपकी राइटिंग में। तो विश्वा जी कुछ बडिंग ऑथर्स के लिए कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कुछ इस बारे में हमें बताएं कि बडिंग ऑथर्स क्या बेटर और चीजें कर सकते हैं। राइट, जरूर जरूर शेयर करना चाहूंगा। राइटिंग कम्स आफ्टर रीडिंग। ओके। राइटिंग कम्स आफ्टर रीडिंग। जब भी आप कुछ लिखना चाहे, स्टार्ट रीडिंग। जिस टॉपिक पे आपकी एक्सपर्टाइज है, आप ये मत समझे यू आर 100% एफिशिएंट ऑन राइटिंग दैट टॉपिक। राइट। आप ये करें कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स, राइट। एंड माय बेस्ट सजेशन इज दैट you should read 10 books, divide into 5 and 5 categories, ओके। 5 non-bestseller books and 5 bestseller books on that particular topic. ओके। इससे आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि करंटली मार्केट में करंटली लोगों को क्या पढ़ना अच्छा लग रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको नॉलेज आएगी, दैट ऑलराइट। इज लिखने का एक प्रॉपर फ्लो आपको समझ में आएगा, वन थिंग। एंड द सेकेंड वन, मैंने बताया 5 बेस्ट सेलर एंड द 5 नॉन बेस्ट सेलर बुक। जी। नॉन बेस्ट सेलर क्यों बताया? रीजन इज दैट कई बारी, इवन मैक्सिमम टाइम्स आप ये फील करेंगे, यू फाइंड एक्सलेंट कंटेंट इन नॉन बेस्ट सेलिंग बुक्स। वो नॉन बेस्ट सेलिंग इसलिए है क्योंकि उसकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग नहीं हुई है, ओके। राइट? So just divide into 2 categories, 5 bestseller and 5 non-bestseller. And after completing your reading, then start writing. And again, एक precautions है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा. जी। Never try to copy any others
कंटेंट, किसी के भी कंटेंट को कॉपी करने की आप कोशिश ना करें। जस्ट यू टेक आइडियाज फ्रॉम देयर, आप वहां से आइडिया ले, एंड जो भी अब तक आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टडी की है, जो भी आपका अब तक का लाइफ जर्नी रहा है, जो भी आपने किसी से सीखा है, उसको अपने वर्ड्स में लिखें, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो देन यू कैन कनेक्ट मी। ओके, दैट इज वंडरफुल। तो बडिंग, और मेरे को एक और बात इसी बात में से निकल के आई विश्वा जी, जो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि बुक की मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने बोला कुछ बुक्स ऑब्वियस, ऑन मतलब सेल नहीं होती हैं इतनी ज्यादा, वो बहुत अच्छी लिखी होती हैं, लेकिन बुक्स की मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है। शायद थोड़ा इस पे अगर रोशनी डालें तो लोगों को, हमारे व्यूअर्स को भी वो समझ में आएगा। नहीं अंजलि जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि देखो, आपने लिख लिया, जी, आपकी बुक पब्लिश हो गई, हु इज गोइंग टू रीड इट? कौन पढ़ेगा? आपके राइट, जानने वाले 5, 10, 15, 20, 100, 200 लोग। जब तक आप इस कंटेंट को, इस बुक के बारे में अलग अलग मेथड से, वीडियोस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, सोशल मीडिया का यूज करके लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक आपके या आपके बुक के बारे में कैसे जानेंगे? ये तो ओके, आपने बुक लिख ली और जस्ट 100-200 लोगों के बीच में चली गई। सो जी, मार्केटिंग इज नेसेसरी, मस्ट है आपके लिए मार्केटिंग। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपके आइडियाज, आपका कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। सो ऑलराइट, इट इज मस्ट फॉर एवरीवन to market their content and their book, even their services too. ओके। That's really a wonderful input that you have given with us, given to us, Vishwa ji. तो फ्रेंड्स, हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि अगर आप बुक लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले रीडिंग बहुत अच्छी सी कीजिए, बिकॉज आपका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है और वो बहुत सही पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन क्योंकि दूसरे ऑथर्स ने भी कुछ लिखा है, उनका भी पर्सपेक्टिव उतना ही मायने रखता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत जरूरी है कि हमें 5 नॉन बेस्ट सेलर्स एंड 5 बेस्ट सेलर्स बुक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ना है, before we start writing our book. And of course, very important, plagiarize मत कीजिए, copy मत कीजिए। आपका कंटेंट अपना होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी और के उससे। सोचिए, आपको पता लगेगा किस ऑब्जेक्टिव तरीके से आप उस बुक को पढ़ने के बाद, दूसरों की बुक्स को पढ़ने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक सही तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और इम्पोर्टेंट जो मत भूलिएगा, वो ये है कि मार्केटिंग करना बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सिर्फ कुछ लोगों तक आपकी बुक्स रह जाएगी। आप जो बहुत सारी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने आसपास की लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, वो आप मैसेज नहीं शेयर कर पाएंगे। तो लोगों की भलाई के लिए जरूरी है कि आप अपनी बुक्स को अच्छी तरह से मार्केट करें, एंड फॉर दैट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विश्वा जी, बिकॉज ही डज एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू एवरीथिंग इन द बुक पब्लिशिंग अरीना। तो आप वहां पर विश्वा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच विश्वा जी फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग दीज वंडरफुल इनपुट्स, एंड आई एम श्योर दीज आर गोइंग टू हेल्प आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। Thanks a lot अंजलि जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड होप सो कि आपका शो काफी अच्छा चले और इन फ्यूचर आप एक अच्छे एंकर और अच्छे एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाएं। थैंक्स अ थैंक लॉट यू फॉर सो मच विश्वा इनवाइटिंग मी। जी। थैंक यू। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप में से जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, द अंजलि शो में अपने मैसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, मैसेज को शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं theanjalishow@gmail.com। हाउएवर, मेरा एक और नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको वापस कांटेक्ट करेगी। द नंबर इज 9717800032। आई रिपीट माई सेल्फ माई फ्रेंड्स, the number is 9717800032, theanjalishow@gmail.com. Thank you so very much for joining us in Vishwa ji. Thank you once again. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।